Assalamualaikum students. Today we are going to start a new chapter in science. It's all about environment management. The last chapter we have covered is disaster management, how we are managing disaster. Today we will have to manage environment. Environment is what? It's all around our surrounding. Let's begin our chapter. You might have seen this diagram in your earlier standard, and what this diagram is actually, can you say? This is the food chain and food web diagram. Okay. Food chain and food web. What is the food chain actually? I will like to divide you all. The sun is the primary source of energy in our solar system. The sun heat energy is trapped by the plant with the help of process called photosynthesis, and this energy in the plant is trapped. This energy of the plant is consumed by, in this image, suppose this is by grasshopper, and the grasshopper is eaten by frog. The frog is eaten by, consumed by snake, and the snake is then consumed by this eagle or hawk. And if these hawks will die, then who will consume? They will be consumed by the microbes, fungus, bacteria, virus. They are going to eat that thing. Means what? They are going to decompose the part of this eagle hawk into smaller or simple substances: water, hydrogen, nitrogen in the air, water, and the dissolvable things in the water. Then the minerals in the soil. It means it will be added back in the soil, it will be added back in the nature. So this three is called as food chain. But it not always remains like this only. There is a complicated method or way that food is consumed. Is this the plant or grass is consumed by grasshopper only? No. Birds also consume it. Different animals also consume it. Suppose if we are taking birds, grasshopper is eating this and it is eaten by birds. Birds is eaten by higher birds, that is this one. Again, this is eaten by herbivorous animal, cow, buffalo, goat. That is eaten by maybe fox, wolf. That is eaten by lion, tiger. So it becomes a chain, a complex system of the food. Each one is dependent upon others. That is called as food web. Food web. So we have different component and level as producer. What does it mean? It means that the lower level, the lower level, that is the producer. Who are the producer? The plant are the producer of the foods. They are the primary producer. So they are in the large quantity. They are in the very large quantity. If it is less in quantity, what will happen? And the quantity of the grasshopper increase. The number of grasshopper is boom. What will happen? They will consume all the crops, and after that there will be no crops. So other animals who are dependent upon crop, they will die. And next time there will be no crop, so grasshopper will die. ग्रासहॉपर के ऊपर डिपेंड कौन है? फ्रॉग. तो फ्रॉग भी डाई हो जाएगा क्योंकि ग्रासहॉपर मर रहा है, क्योंकि अभी खाना तो अवेलेबल नहीं है, क्योंकि पूरा खाना तो ग्रासहॉपर ने खा लिया ऑलरेडी. अब आगे खाना नहीं मिल रहा है, तो ग्रासहॉपर विल डाई, फ्रॉग विल डाई, क्योंकि ये एक के ऊपर डिपेंड है. स्नेक फ्रॉग के ऊपर डिपेंड है, तो फ्रॉग नहीं अवेलेबल तो स्नेक क्या होंगे? अफेक्टेड होंगे. स्नेक नहीं मिलेगा तो हॉक नहीं मिलेगा. तो ईच वन इज डिपेंडेंट अपॉन अदर, ईच वन इज अफेक्टिंग अदर. और यहाँ पे हमेशा देखने का जो सैकलिंग है, जो स्टार्टिंग का रहता है वो हमेशा मोर इन नंबर होता है. मतलब प्लांट जो रहेगा, ट्री रहेगा, वो ज्यादा क्वांटिटी में रहेगा एज कंपेयर टू द हायर वन. So they are consumer, they are decomposer. What is a decomposer?
अभी इकोसिस्टम देखते हैं। व्हाट इज द इकोसिस्टम? जो कि हमारे एक प्लेस पे लिविंग थिंग भी रहती है, नॉन लिविंग थिंग भी रहती है, एंड दे आर इंटरडिपेंडेंट अपॉन ईच अदर। तो उनके इंटरेक्शन को, उनके कोऑर्डिनेशन को क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम बोलते हैं। उनके इंटरेक्शन को क्या बोलेंगे? इकोसिस्टम बोलेंगे। जैसे आप एक उनके इंटरेक्शन को क्या बोलेंगे? इकोसिस्टम बोलते हैं। तो हियर द वर्ड बायोटिक एंड अबायोटिक इज यूज्ड। बायोटिक मींस लिविंग एंड अबायोटिक मींस नॉन लिविंग थिंग्स। अभी एक पॉन्ड लेते हैं छोटा सा। अब पॉन्ड में क्या होता है? वाटर इज देयर, वाटर में फिशेज इज देयर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर देयर। अब वो वाटर के ऊपर डिपेंड है। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो वाटर में भी रहते हैं और लैंड पे भी रहते हैं। एग्जांपल फ्रॉग है, स्नेक्स है। अब वो वाटर को कंज्यूम करने के लिए डिफरेंट प्लांट जो जिनका कंजम्पशन ऑफ वाटर ज्यादा है वो क्या होंगे? पॉन्ड के आसपास ही ग्रो होंगे। अब जो ऑर्गेनिज्म फ्रॉग के ऊपर डिपेंड है, स्नेक के ऊपर डिपेंड है, वो क्या होंगे? वाटर के आसपास ही घूमते रहेंगे ताकि उनका फूड सोर्स वहां पे ही है। तो दे आर डिपेंडेंट अपॉन दैट। अब ये जो फिश है, ये जो इंसेक्ट है, एल्गी, फंगस, ये कहां से उनको मिल रहा है? तो दे आर यूटिलाइजिंग द मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। वहां सॉइल से मिनरल्स उठा रहे। व्हाट आर द मिनरल्स इन द सॉइल? दे आर नॉन लिविंग थिंग, दे आर अबायोटिक फैक्टर, दे आर यूटिलाइजिंग द ऑक्सीजन, दे आर यूटिलाइजिंग द नाइट्रोजन। तो ये क्या है? अबायोटिक फैक्टर है। तो लिविंग थिंग क्या हो रहे? यूज कर रहे अबायोटिक फैक्टर को, दैट इज नॉन लिविंग थिंग को यूज कर रहे, और दे आर इंटरडिपेंडेंट अपॉन ईच अदर। मैंने पहले बताया था प्लांट क्या किया? सनलाइट ट्रैप किया, प्लांट को कौ या पे खा लिया, या अब कौ को जो दूसरे हायर एनिमल वो खा लिए। अब वो हायर एनिमल मर गए तो वापस से क्या हो गया? उनका जितने मिनरल्स थे वो वापस से सॉइल में या वो एरिया में आके ऐड हो गया। तो इट्स कीप ऑन रोटेटिंग, इट्स कीप ऑन रोटेटिंग। अभी देखो यहाँ पे प्लांट क्या? प्राइमरी प्रोड्यूसर है, इधर प्रोड्यूसर, और अदर आर द कंज्यूमर, दे आर द कंज्यूमर। प्लांट आर प्रोड्यूसर एंड दिस कैटेगरी इज कॉल्ड एज हर्बीवोर। जो प्राइमरी प्रोड्यूसर पे डिपेंड होता है उसको क्या बोलते हैं? हर्बीवोर्स बोलते हैं। दे आर गोइंग टू कंज्यूम प्लांट ओनली। अब जो चीज इसको कंज्यूम करने वाला है उसको क्या बोलेंगे? कार्निवोरस बोलेंगे। कार्निवोरस व्हाट आर दे? They might be fox, they might be wolf, they might be snake, they might be lion tiger also, but lion tigers are the higher in that category. अरे carnivorous तो fox तो भी lion tiger खा जाते हैं। तो lion tiger क्या हो गया? एकदम सुप्रीम में चले गए, एपेक्स में चले गए, उनको कोई मार के नहीं खा सकता। स्नेक फ्रॉग ये सब खाएंगे, तो स्नेक को कौन खाएगा? हॉक। हॉक को कौन खाएगा? नो वन। तो दे आर द एपेक्स, दे आर द एट द टॉप कार्निवोरस उसको कहा जाता है। अब दे आर डिफरेंट कैटेगरी जो दोनों खाते हैं। कौन? ये भी खाएगा और ये भी खाता है। वो आर दे? वी आर हियर ह्यूमन बीइंग्स, बियर, दे प्लांट आल्सो एंड दे एनिमल आल्सो। तो दैट इज कॉल्ड एज ओमनीवोरस उसको बोलते हैं। तो टाइगर, लायन, दे ईट, दे आर गोइंग टू ईट, दे आर द प्रेडेटर्स। अब ये क्या करते हैं? इनका यहाँ पे वर्ड ओवर पॉपुलेशन इज यूज्ड। अभी सोचो डियर जो है जंगल में बहुत ज्यादा हो गया, वो क्या करे? सारे लीफ, सारे और हर्बीवोर बहुत ज्यादा हो गए ना, सारे लीफ सारे प्लांट को कंज्यूम कर जाएंगे। तो कुछ टाइम में ऐसा बचेगा कि देयर विल बी नो प्लांट, देयर विल नो ट्री, देयर विल नो ग्रास। अब डियर के ऊपर कौन डिपेंड है? ये लोग डिपेंड है, भारतीय लोग। तो जब डियर को खाना नहीं मिलेगा, प्लांट क्योंकि मर चुके हैं, क्योंकि डियर का पॉपुलेशन और हर्बीवोरस का पॉपुलेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया है। तो ये लायन टाइगर तो डियर को खाते जाएंगे, बाद में डियर को जब खाना बंद हो जाएगा तो डियर भी मरना स्टार्ट होंगे। जब डियर मरेंगे तो ये भी भूखे मरेंगे, है ना। अभी अगर देखते हैं, अगर इनका पॉपुलेशन बढ़ गया
तो ये क्या करे, डियर का पॉपुलेशन को कंट्रोल करे, हर्बीवोरस की पॉपुलेशन को कंट्रोल करे। सपोज जंगल में टाइगर का पॉपुलेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा, होगा ये कि डियर कम हो जाएगी, डियर का पॉपुलेशन विल डिक्रीज, उनका ग्राफ क्या होगा, डिक्रीज होने लगेगा। फिर ऐसा टाइम आएगा कि देयर विल बी नो डियर, देयर विल नो हर्बीवोरस एनिमल इन द जंगल। तो हर चीज क्या है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। और जैसे जैसे मैं बोला कि एपेक्स में जाते हैं हम लोग, ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, उनका क्वांटिटी का क्या होता है, कम होते जाता है। तो दे कंट्रोल ईच अदर पॉपुलेशन। अब ये जो टाइगर है, अगर सपोज ये 10 साल ऐसे ही मरा हुआ है पूरा, वन विल हैपन, कोई टूरिस्ट जाएगा देखेगा, एक बार देख गया, एक साल में देखा तो वहां पे टाइगर मरा हुआ था, उसको बुरा लगा। फिर 2 साल बाद गया, फिर देखा वही टाइगर मरा हुआ है। 5 साल बाद गया, वो आदमी टूरिज्म करना ही बंद कर देगा। आपके रोड के पास अगर जो चूहे मर जाते हैं, अगर वो जिंदगी भर आपकी वैसे मरे हुए लगे तो कैसा लगेगा, यू विल फील वेरी पैथेटिक, बहुत बुरा लगेगा, बहुत घिन आएगा। तो अल्लाह ताला ने ये सब चीज भी बनाया है। ये क्या करते हैं, इनको जो मर जाते हैं, फिल्थी चीज जो है ना, खत्म हो गया, मर गए, तो उसमें से बात सारे वो देखने में अच्छा नहीं लगता है, तो उसको कंज्यूम करके नीट एंड क्लीन कर देते हैं एनवायरनमेंट को। What are they? They are the insect, they are the termite, they are the fungus, they are the bacteria. वो क्या करते हैं, उनको कंज्यूम करके हमारे एनवायरनमेंट को, हमारे नेचर को नीट एंड क्लीन कर देते हैं। तो दे आर आल्सो वेरी यूजफुल। इसलिए अल्लाह ताला ने किसी भी चीज को फालतू में नहीं बनाया है यहाँ पे, एवरीथिंग आर यूजफुल फॉर अस। हर चीज क्या है, यूजफुल है। तो दे क्लियरिंग द इन्वायरमेंट, तो दे आर कॉल्ड एज डिकम्पोजर बोलते हैं इसको। इस सिंपल पार्ट में क्या करते हैं, उसको डिकम्पोज कर देते हैं, वाटर है, डिफरेंट टाइप ऑफ गैस में, मिनरल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। अभी देखते हैं इन्वायरमेंट एंड इकोसिस्टम का क्या रिलेशनशिप है। व्हाट इज द इन्वायरमेंट, जो हमारे सराउंडिंग में जो है एरिया जो हमें अफेक्ट कर रहा है, एक लिविंग थिंग को अफेक्ट कर रहा है, तो वो उसका इन्वायरमेंट हो गया। द कंडीशन विच इज अफेक्टिंग द सराउंडिंग इज द इन्वायरमेंट। अब इसको थोड़ा इलेबोरेट में क्या लिखे कॉन्सेप्ट को, इन्वायरमेंट इज अ ब्रॉड कॉन्सेप्ट, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल फैक्टर अफेक्टिंग द लिविंग थिंग। क्या फिजिकल भी है, फिजिकल में क्या आ गया, टेम्परेचर आ गया, फोर्स ऑफ नेचर आ गया, केमिकल में डिफरेंट मिनरल्स आ गए, प्रोसेस आ गए, बायोलॉजिकल में लिविंग थिंग्स आ गए। तो ये सारे चीज क्या मिलके क्या बनते हैं, इन द इन्वायरमेंट बनते हैं, एंड दे आर अफेक्टिंग द लिविंग थिंग्स ओवर देयर। दीस फैक्टर्स आर अफेक्टिंग द लिविंग थिंग्स। अब ये इन्वायरमेंट क्या करेगा, बायोटिक, अबायोटिक, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल फैक्टर को भी इंक्लूड करता है। अभी कॉ है, कॉ ग्रास खा रहा है, लीफ फॉल उसको खा रहा है, सनलाइट से एनर्जी मिल रहा है कॉ को भी, और फिर हम लोग भी यहाँ पे रह रहे, कॉ को हम लोग कंज्यूम करते हैं। तो इट इज वी आर इंटरेक्टिंग विद ईच अदर। ये हमारे सराउंडिंग में, यहाँ पे फ्रेश एयर, ट्री है तो फ्रेश एयर आ रहा है, कॉर्डन से यूज कर रहे हैं उसको गोबर गैस बनाने में। तो वी आर इंटरेक्टिंग विद ईच अदर एंड दिस इज अवर एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के दो फैक्टर क्या है, बायोटिक एंड अबायोटिक, लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग। और दूसरा एनवायरनमेंट क्या होता है, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। व्हाट इज द नेचुरल एनवायरनमेंट, नेचर में जो अल्लाह ताला ने डायरेक्टली उससे बनाया है। फॉर एग्जांपल ट्री है, लिविंग थिंग्स है, लाइक एनिमल, बर्ड्स, बर्ड्स के कितने बर्ड्स की कैटेगरी हो गए, एनिमल के तो जितनी कैटेगरी एनिमल के हो गए, इंसेक्ट की कैटेगरी हो गए, ये सारी चीज क्या हो गए, नेचुरल एनवायरनमेंट हो गए, माउंटेन्स हो गए, रिवर हो गए। तो ये सारे एनवायरनमेंट के नेचुरल वे में आएंगे। आर्टिफिशियल में क्या होंगे, सिटी एरिया। सिटी एरिया में आप आते हैं तो क्या मिलता है आपको, पॉल्यूशन मिलते हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग मिलते हैं, तो दे आर मेड बाय ह्यूमन बींग्स। तो दिस इज द मैन मेड एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट को दोनों अफेक्ट करते हैं, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल वे में भी एनवायरनमेंट क्या होता है, अफेक्ट होता है। देखो नेचर में एयर, एटमॉस्फेयर, वाटर, लैंड, लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये सारी चीज इंक्लूड होते हैं एनवायरनमेंट में। हमारा जो ये आर्टिफिशियल है, तो ये आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट है। अब ये एरिया में जो रहने वाले जो बिल्डिंग, मेट्रो सिटी में रहते हैं, तो वहां पे का आपका एयर का क्वांटिटी क्या रहेगा, आपको डिफरेंट रहेगा एज कम्पेयर टू विलेज। वहाँ पे ऑक्सीजन के परसेंटेज कम रहेंगे, वहाँ पे पॉल्यूशन के परसेंटेज ज्यादा रहेंगे वहाँ पे।
वहां पे लिविंग थिंग जो आसपास रहेंगे वो दूसरा रहेंगे एज कम्पेयर टू विलेज एरिया या जंगल एरिया में। अभी देखो जो साइंस स्टडी करता है किसके बारे में, इंटरेक्शन ऑफ बायोटिक लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग के इंटरेक्शन के बारे में स्टडी करता है, तो क्या बोलते हैं इकोलॉजी। लॉजी मींस स्टडी एंड इको मतलब इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम के बारे में, इन्वायरमेंट के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो इसको क्या बोलेंगे, इकोलॉजी बोलेंगे। और जो पर्सन स्टडी करता है इन्वायरमेंट को तो क्या बोलते हैं, इन्वायरमेंटलिस्ट बोलते हैं उसको, मतलब ही इज डेडिकेटेड टू डू द वर्क रिसर्च इन द फील्ड ऑफ इन्वायरमेंट। यहाँ पे लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग को कर रहे हैं तो इकोलॉजी बोलेंगे। So we have to, what is showing the figure, we have to preserve the our earth. Earth is the largest ecosystem. अब ये इकोसिस्टम मैं पहले भी बोला कि जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, ये स्ट्रीम ऑफ वाटर, छोटा सा रिवर है। अब ये रिवर में वाटर इज अवेलेबल, तो यहाँ पे कौन रह रहे हैं, यहाँ पे फिशेज रह रहे हैं, यहाँ पे डिफरेंट इंसेक्ट रह रहे हैं। ये इंसेक्ट किसके ऊपर डिपेंड है, ये छोटे छोटे जो ग्रीन कलर का algae है तो उसके ऊपर डिपेंड है, ये इसको कंज्यूम करते हैं। ये algae कहाँ से ग्रो होता है, ये algae मिनरल्स लेता है, रॉक से मिनरल्स लिया और सनलाइट से ये ग्रो होना स्टार्ट हो गया। अब इसको कंज्यूम कर रहा है फिश या इंसेक्ट कंज्यूम कर रहे हैं, इंसेक्ट के ऊपर डिपेंड है, दूसरे फ्रॉग है, दूसरे एनिमल डिपेंड है, उसके ऊपर दूसरे एनिमल डिपेंड है। ये जो यहाँ पे ट्रीज और ये सॉरी यहाँ पे जो ग्रासेस है उनको किस तरह के वो वाटर कंज्यूमिंग है, इसलिए वो ग्रो वे नियर द रिवर, ताकि वो क्या करे, ज्यादा से ज्यादा पानी को कंज्यूम करे। विदाउट वाटर वो जिंदा नहीं रह सकते, इसलिए वो रिवर के आसपास ज्यादा ग्रो हुए, फिर वाटर डिपेंडेंट है वो। तो ये क्या हो गया, इकोसिस्टम हो गया रिवर का। रिवर का इकोसिस्टम हुआ जहाँ पे इंटरेक्शन हो रहा है। नॉन लिविंग थिंग हमारा स्टोन है, हमारा वो मिनरल्स दे रहा है। लिविंग थिंग हमारा जो ट्रीज है ये सब लिविंग थिंग है। एयर यहाँ पे क्या होते हैं, फ्रेश एयर होते हैं। तो ये एक रिवर का इकोसिस्टम हो गया। अगर हम लोग पूरा बड़ा सिस्टम देखें तो हमारा अर्थ भी क्या है, इकोसिस्टम है, द लार्जेस्ट इकोसिस्टम, जहाँ पे लिविंग थिंग नॉन लिविंग थिंग का इंटरेक्शन कंटिन्यूअसली हो रहा है। अभी देखिए कंजर्वेशन ऑफ नेचर या इन्वायरमेंट ने, हमारा इन्वायरमेंट है, अभी हम लोग उससे इंटरेक्ट करें हमेशा, तो अगर वो हम लोग ऐसे छोड़ देते उसको बर्बाद होने के लिए यूज करें और बहुत ज्यादा यूज करें, उसको कंजम्पशन कर रहे हैं, तो क्या होगा, अगर हम लोग कंजर्व नहीं करें, उसको प्रिजर्व नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो डिस्ट्रॉय होगा। अगर डिस्ट्रॉय होगा तो हमें क्या होंगे, अफेक्टेड होंगे। जैसे क्या था, फार्मर है, फार्मर क्रॉप्स को क्या कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, बाद में उसको प्रिजर्व नहीं करता, उसको हिफाजत नहीं करता हो, कोई भी इंसेक्ट आके, कोई भी एनिमल आके खा के जा रहा है, तो क्या कौन अफेक्टेड होगा, फार्मर अफेक्टेड होगा। तो फार्मर को क्या करने पड़ेगा, अपने फार्मिंग को प्रोटेक्ट करने पड़ेगा। उसी तरह हम क्या करें, इन्वायरमेंट को यूज कर रहे हैं। एयर इज अवर इन्वायरमेंट, वाटर इज इन अवर इन्वायरमेंट। जो फार्मिंग फूड ग्रो हो रहा है वो हमारे इन्वायरमेंट का हिस्सा है। तो क्या हो रहा है, अगर हम लोग उसको प्रिजर्व नहीं करेंगे तो क्या होगा कि वी विल बी लूजर। जैसे हम लोग पॉल्यूट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, तो ये सब अफेक्ट कर रहे हैं इन्वायरमेंट को, एनिमल को किलिंग कर रहे हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, डिफॉरेस्टेशन करें तो एफॉरेस्टेशन भी करना चाहिए। एफॉरेस्टेशन मतलब प्लांट को लगाना भी चाहिए, फॉरेस्ट को लगाना भी चाहिए। अगर पॉल्यूट कर रहे हैं इधर एरिया में तो नीट एंड क्लीन भी हमारी ड्यूटी है। एयर पॉल्यूशन कर रहे हैं तो बाद में क्या करना चाहिए, वो पॉल्यूशन एयर को भी हमें क्या करना चाहिए, रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए। तो ये हमारी जिम्मेदारी है। तो इंसान क्या है, सबसे ऊपर वाले मखलूक है। इंसान, ह्यूमन एग्जिस्टेंस इज इम्पॉसिबल विदाउट द एनवायरनमेंट। वी हैव टू प्रिजर्व द नेचर, ताकि वो बैलेंस का डिस्टर्ब नहीं हो। कोई भी एक चीज खत्म हो जाएगा तो दूसरा चीज मैंने बताया कि देखो ये टूरिस्ट का प्लेस है, इतना सुंदर दिख रहा है, इट इज क्रिएटेड बाय ह्यूमन बीइंग, है ना। ये इंसानों ने ऐसा क्रिएशन किया, ये ब्यूटीफुल दिख रहा है, हमें नहीं दिख नहीं रहा है क्योंकि हमने इसको गंदा किया। अभी देखो ये बर्ड्स है, ये बर्ड्स में भी डाई, क्यों, क्योंकि ये पॉल्यूटेड पानी को पी लिए होंगे, कंज्यूम किए होंगे, या तो ऑयल स्पिल हो गया होगा ओशन में, उसके बाद ये कंज्यूम किए होंगे। इनका फेजर क्या होता है, जब तेल लग जाता है तो अभी दे कांट फ्लाई
तो ये बाद में उसे मर गए। अभी समुद्र में क्या किया, साइड में लाके दे दिया इंसान को, आप जो है बिरयानी बनाओ इसका, अब क्या बनाने वाले बनाओ खाओ इसको और देखते रहो। तो वी विल फील बैड। अभी ऐसे होते गया तो सारे मर जाएंगे, तो हमें समुद्र में कोई भी बर्ड्स नहीं मिलेंगे। बर्ड्स में फिर क्या होगा कि वी विल नॉट एंजॉय दैट थिंग। हम लोग नेचर के पास क्यों जाते हैं, गाँव क्यों जाते हैं, टेंशन दूर करने के लिए, रिलैक्स फील करने के लिए, तो हमें उससे अच्छा लगता है। तो हमें फिर बाद में सब सारी चीज खत्म हो जाएंगे तो वी विल फील बैड, हर चीज क्या हो गई रोबोटिक हो जाएगा, आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट हो जाएगा। तो वी हैव टू प्रिजर्व देम। और भी बहुत सारे फोटो है। तो ये नेचुरल वे में भी क्या होता है, अर्थक्वेक, सुनामी, वॉल्केनो। वॉल्केनो आता है तो उसके एशेज जो होते हैं ना प्लांट के ऊपर स्प्रेड हो जाते हैं, वो फिर प्लांट क्या करता है, फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा, तो प्लांट मर जाएगा। प्लांट मरेगा तो फिर दूसरे चीज भी मर जाएंगे। तो वो नेचुरल वे ऑफ क्या हो रहा है, अफेक्ट कर रहा है। हमारा आर्टिफिशियल वे में ये हम लोग अफेक्ट कर रहे हैं। फर्टिलाइजर यूज करते हैं, प्लास्टिक पॉल्यूशन है, ये सारे पॉल्यूशन क्या कर रहे हैं, एनवायरमेंट को खराब कर रहे हैं। डिग्रेडेशन ऑफ ये वाटर को कंज्यूम कौन करेगा, एनिमल और दूसरे फिशेस करेंगे, तो वो क्या होगा, यहाँ पे एयर पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो रहा है। तो दे आर अफेक्टिंग अस। हम लोग फिर इसको हवा को कंज्यूम करेंगे तो हमारा डिजीज होगा हमें। तो पॉल्यूशन किसको बोलते हैं, जो अननेसेसरी है, यूजेबल थिंग को जो एनवायरमेंट में ऐड हो रहा है उसको पॉल्यूशन बोलेंगे। साउंड पॉल्यूशन मतलब आवाज आ रहा है, हमें उस आवाज को पसंद नहीं है, वी डोंट नीड इट, इट्स अफेक्टिंग अस, तो दैट साउंड इज व्हाट, पॉल्यूटेड साउंड। This is the darkness we have been. So directly indirectly changes the physical, chemical and biological property of air, water and soil. Environment तो pollution क्या करता है, प्रॉपर्टी चेंज कर देता है। यहाँ पे जो जाएगा कंज्यूम करेगा, अगर किसी बच्चे को पिकनिक स्पॉट पे डाल दिया तो व्हाट विल हैपन, दे विल डाई ओवर देयर। एनवायरमेंट का और रीजन क्या है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन है, इंडिस्क्रिमिनेट नेचुरल रिसोर्स को यूज करना, मतलब ग्रीडीनेस की वजह से यूज करना, ये ज्यादा है। आप यूज करो लेकिन उसको वापस से प्रिजर्व भी करो। फॉरेस्ट को काटने, प्लांट वे में नहीं हो रहा है, अर्बनाइजेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, यहाँ पे साउंड पॉल्यूशन हो रहा है। तो हमें क्या करने का, कंजर्व करने का, नेचर को, एनवायरनमेंट को कंजर्व करने का, हिफाजत करने का है। जैसे प्लास्टिक है तो उसको रिसाइकलिंग करेंगे और वापस से प्लास्टिक को उसको यूज कर सकते हैं। तो दिस इज द वे वी कैन कंजर्व द एनवायरनमेंट। अभी यहाँ पे नीड है कंजर्वेशन, नीड ऑफ एनवायरमेंटल कंजर्वेशन जरूरत है आज का। इसलिए क्या डेवलपिंग अंडर डेवलप कंट्री, सारे कंट्री ने रिस्पॉन्सिबिलिटी समझा और उसके लिए क्या कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं और कुछ काम कर रहे हैं उसके लिए। लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन हो रहा है पब्लिक का। कैसे हो रहा है, अवेयरनेस करके। अवेयरनेस इज द बेस्ट थिंग, पब्लिक को एजुकेटेड कर रहे हैं। देखो यहाँ पे स्कूल एजुकेशन के थ्रू इनको इन्वायरमेंट लेके जाया गया जंगल में, इनको बताया गया जंगल का क्या फायदा है। तो स्टूडेंट विल लर्न, तो देर जब वो बड़े होंगे तो उनको एहसास होगा, उनको फील होगा कि वी हैव टू प्रिजर्व द फॉरेस्ट, वी हैव टू प्रिजर्व द फॉरेस्ट को प्रिजर्व करने का है। तो ये सब डिफरेंट प्लानर से या लोगों से या एजुकेशन सिस्टम से वी कैन मेक द अवेयरनेस इन द चिल्ड्रन, और वो चिल्ड्रन बड़े होकर के क्या होंगे, नेचर को फिर प्रिजर्व करेंगे, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे। तो हमारा क्या है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना। और या डिफरेंट डायग्राम इज गिवन ऑफ, बहुत से कंपटीशन होते हैं ताकि बच्चे को इनकरेज करें। अभी इंसान क्या करे, सारे रिसोर्स को यूज करे एंड द बेस्ट ऑफ, सबसे ऊपर के मखलूक है ना, अल्लाह ताला क्या बोले, इंसान क्या है, सबसे अशरफुल मखलूक है। तो हमारा ड्यूटी कि हम अपने से जो नीचे वाले को क्या करें, उसको प्रिजर्व करें, उसको प्रोटेक्ट करें। नहीं करेंगे तो दैट इज गोइंग टू हार्म अस, क्योंकि अल्लाह ताला ने हर चीज जो बनाया दुनिया में हमारे यूज के लिए बनाया है। हमें भले वो हार्मफुल लगा तो ओवरऑल क्या है, हमारे यूज के लिए वो। तो वी हैव टू प्रोटेक्ट इट, उसे डिस्ट्रॉय नहीं करें, उसको इंडिस्क्रिमिनेटली डिस्ट्रॉय करेंगे तो क्या होगा कि नेक्स्ट टाइम हमें नहीं मिलेगा वो चीज। तो दिस इज द अंडरस्टैंडिंग कि हम लोग प्लांट को ग्रो कर रहे हैं तो फिर हमें क्या मिलेगा, उसे बेनिफिट्स मिलेगा, और एनवायरमेंट में बैलेंस रहेंगे और इसको ह्यूमन पे कंजर्व कर सकते, इंप्रूव कर सकते क्वालिटी।
क्योंकि ह्यूमन ही मेन सोर्स है इसको अफेक्ट करने वाले। सिंगल पर्सन क्या किया, देखो फॉरेस्ट लगा, यहाँ पे एग्जाम्पल है, ये इंसान का जादव मोलाई के आसाम में इसने क्या किया था, आसाम में ये 16 ईयर का था ना, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से इसको ड्यूटी मिला था फॉरेस्ट लगाने का। तो 100 एकड़ का इसको एक टीम को मिला था बाकी 100 एकड़ में फॉरेस्ट लगाने का। तो जादव मोलाई को कितना इंस्पिरेशन हुआ कि उसने क्या किया, वो जब प्रोजेक्ट खत्म भी हो गया 100 एकड़ का, वो कंटिन्यू रखा अपना फ्री ऑफ कॉस्ट, वो क्या किया, जंगल लगाते गया। एंड 30 ईयर में उसने 1360 एकड़ 1360 एकड़ के एरिया में उसने क्या किया, जंगल लगाया। तो इज द फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया। और पर्सनली मैं इससे मिला हूँ, ये जब मैं स्टूडेंट था कॉलेज में एमएससी में, तो ही केम देयर एंड द नेक्स्ट डे ही वाज गोइंग पेरिस, फ्रांस जा रहा था ये भी इंसान बोला है। तो इसका पूरे वर्ल्ड में इसका नाम है अभी, और इज कॉल्ड एज फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया। और जो जंगल था उसके जंगल अब इसके नाम पे रखा गया है, मोलाई जंगल कहा जाता है। इट्स इंस्पिरेशन, इज एन इलिटरेट पर्सन बट हिज लव फॉर द नेचर, हिज लव फॉर द फॉरेस्ट। क्या किया इसने, 30 साल कंटिन्यूस काम किया उसने जंगल लगाने का। अल्हम्दुलिल्लाह, इट्स अ बिग थिंग, वी शुड गेट इंस्पिरेशन। वी मुस्लिम्स आर, मुसलमानों को अल्लाह के रसूल ने बताया कि आप तो मालूम हो कि एक पेड़ भी आपके हाथ में हो, आपको पता चले कल क्यामत है, तो आप उस पेड़ को लगा दो, उस प्लांट को लगा दो, आपको सवाब मिलेगा। आपको मुसलमान एक प्लांट को लगाते हैं, ट्री को लगाते हैं, वो ट्री बड़ा होता है, उससे जो फ्रूट को कंज्यूम करेगा, कोई शेड ले रहा है, छाव में बैठ रहा है, उसके जो भी बेनिफिट उसे हासिल कर रहा है, तो वो उसके लिए सदका होगा। किसने बोला, अल्लाह के रसूल प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला ये चीज़ कि हमें पेड़ लगाना चाहिए, हमें पेड़ को अननेसेसरी डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए। तो वी आर आवर ड्यूटी, हमें क्या मिल रहा है कि उसको सवाब भी मिलेगा। दुनिया में अगर नहीं मिला कोई रिवार्ड, कोई प्राइज नहीं मिला, तो आखिरत में अल्लाह ताला से सवाब देंगे कि अगर हम लोग क्या करें, प्लांटिंग कर रहे हैं और हम लोग नेचर को प्रिजर्व करें, हमें अल्लाह ताला खुद सवाब दे रहे हैं। तो वी आर इनकरेज, वी शुड डू, हमारा ड्यूटी था हमें करने का। तो इंशाल्लाह हमारे जो बच्चे इंशाल्लाह इंस्पायर्ड होके और ऐसा काम करेंगे इंशाल्लाह। तो 30 ईयर्स ने क्या किया, काम किया जंगल ऑफ कोकिलामुका ऑफ आसाम डिस्ट्रिक्ट में। इसको पद्मश्री अवार्ड भी मिला और बहुत सारे अवार्ड भी मिले इसको। Here now the word come biodiversity. What is the biodiversity? You see, different organisms are over here. Bio means living thing, diversity means variety. Different variety of living thing को biodiversity बोलते हैं। देखो यहाँ पे बर्ड से तो अलग अलग कैटेगरी बर्ड के लिए, फ्लावर तो फ्लावर के अलग अलग कैटेगरी है, यहाँ पे भी फ्लावर है, यहाँ पे भी फ्लावर है, इंसेक्ट है तो बटरफ्लाई, इंसेक्ट, डिफरेंट टाइप से आपको कितने सारी चीज मिलेंगी। तो ये क्या है, डाइवर्सिटी बता रहे ना कि हमें आपको जानदार चीज का कितने सारे डाइवर्सिटी, आपको अगर इंसेक्ट देखेंगे कितने सारे इंसेक्ट है, बर्ड देखेंगे कितने सारे बर्ड है, एनिमल है कितने सारे, प्लांट है तो कितने सारे प्लांट है, ट्री है तो कितने सारे ट्रीज है। तो these are microbes है तो microbes also in that only, तो कितने बायोडाइवर्सिटी, कितना डिफरेंट स्पीसीज पाए जाते हैं। तो is the richness of living organism in nature due to presence of variety of organism ecosystem and genetic variation within a species. Biodiversity occur at a different level, कौन-कौन से लेवल पे हो रहा है, what are the genetic diversity, what is the genetic diversity here। Suppose क्या करूं मैं कि एक स्टूडेंट को एक ऐसे क्लास में लेके आओ जहाँ पे कुछ लोग कश्मीरी है, कुछ लोग साउथ इंडियन है, कुछ गुजराती है, कुछ लोग अफ्रीकन है, कुछ चाइनीज है, कुछ नॉर्थ अमेरिकन है, कुछ साउथ अमेरिकन है, लाके छोड़ दिया, उसको बोले कि व्हाट आर द डिफरेंस, तो बता देगा कि ये कश्मीरी लोग हैं, ये यहाँ के 95% वो क्लियरली बता देगा। Why he recognizing all people are human being, but still he segregating them. So what is the difference? There is a genetic difference between them. They are human being, but उनके अंदर genetic difference होता है। इसी तरह आप मैंगो लो, डिफरेंट टाइप आपको मैंगो मिलेगा। एप्पल लो तो हम वाशिंगटन एप्पल अलग होता है, न्यूजीलैंड का एप्पल अलग होता है, हमारा कश्मीर का एप्पल अलग होता है, और जो वाइल्ड एप्पल होता है वो भी अलग होते हैं। तो व्हाट इज दैट, ऑल आर एप्पल बट दे आर डिफरेंसिंग इन जीन्स, ओके, दैट इज द जेनेटिक डाइवर्सिटी। तो एक चीज तो है ही, हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म है ही, लेकिन उसके अंदर भी वैरायटी है, तो दैट इज आल्सो इंक्लूडेड इनटू बायोडाइवर्सिटी।
they are dogs, different types, all are dogs, but they are different category of dogs. अब ये क्या हो सकते हैं, जेनेटिक डाइवर्सिटी इसको बोलते हैं, एक ही ऑर्गेनिज्म, मतलब वो जब सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाएंगे तो उनसे उनके ही नस्ल का ऑर्गेनिज्म पैदा होगा, तब देयर सेक्सुअल जो अगर वो रिप्रोडक्शन करते हैं तो उनका जो नस्ल होगा वो सही होगा। अगर आप लिपर्ड और टाइगर में रिलेशनशिप बनाते हैं तो जो बच्चे पैदा होंगे इट्स नॉट सक्सेसफुल, वो बच्चे सक्सेसफुल नहीं होगा। बच्चा हो भी गया तो आगे जाके वो बच्चा रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, तो दैट इज नॉट ऑफ सेम जीन्स। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि सेम जीन्स का नहीं है, वो सेम जीन्स का है रहेगा तो वो दे विल रिप्रोड्यूस एंड ये उनका जो नस्ल है वो आगे बढ़ते रहेगा। स्पीसीज डाइवर्सिटी हो गया सेकंड वाला। स्पीसीज डाइवर्सिटी मतलब कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म है, बर्ड है तो अलग अलग बर्ड है, स्नेक है तो अलग अलग स्नेक है, पैंडा अलग अलग है, लिपर्ड में अलग अलग कैटेगरी, डियर में अलग अलग कैटेगरी, तो ये क्या हो गया? स्पीसीज डाइवर्सिटी हो गया। तो दे आर प्लांट के बहुत सारे, एनिमल के बहुत सारे, माइक्रोब्स के बहुत सारे, इंसेक्ट के बहुत सारे, बर्ड्स के बहुत सारे स्पीसीज है, दैट इज द स्पीसीज डाइवर्सिटी। अनदर इज द इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। अब एक पॉन्ड का इकोसिस्टम, ये तो पॉन्ड का अलग रहेगा, आप रिवर का लो तो रिवर का अलग रहेगा, ओशन के पास जाओ तो ओशन का अलग रहेगा, आप सिटी एरिया में जाएंगे तो वहां पे का इकोसिस्टम अलग रहेगा, वहां पे इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग क्या रहेंगे? अलग रहेंगे। आप हिमालय के पास जाओ, फॉरेस्ट एरिया में जो पहाड़ी इलाका है वहां पे इकोसिस्टम क्या रहेंगे? अलग रहेंगे। तो दैट इज द डिफरेंट कैटेगरी ऑफ इकोसिस्टम। तो वहां पे रहने वाले ऑर्गेनिज्म भी क्या है, उनके अंदर चेंजेस रहेगा। तो ये इकोसिस्टम डाइवर्सिटी हो गया। How we have to conserve the biodiversity? हमें उनको रेयर स्पीसीज जो बहुत ही कम मिलते हैं, जिनका क्वांटिटी बहुत ही कम है दुनिया में, उनको क्या करने का? प्रोटेक्ट करने का, इस्टेब्लिश करने का क्या? नेशनल पार्क एंड सेंचुरीज। व्हाट इज द नेशनल पार्क? इट इज फॉर प्रिजर्विंग द प्लांट, सेंचुरीज मीन फॉर प्रिजर्विंग द एनिमल्स। तो उसके लिए बनाया जाता है, जैसे नेशनल पार्क है संजय गांधी नेशनल पार्क, वहाँ पे प्लांट को प्रिजर्व करने के, ताकि मुंबई के एरिया का जो पॉल्यूशन देगा वो कंज्यूम हो जाएगा, नेशनल पार्क ऑफ संजय गांधी से कंज्यूम हो जाएगा। तो वहाँ पे प्लांट को प्रिजर्व किया गया, उसमें कुछ एनिमल भी डालते हैं ताकि पब्लिक ऐसा टूरिस्ट के लिए वहाँ पे आए। ये प्लांट देखने के लिए तो नहीं आएंगे, तो ऐसा टूरिस्ट एनिमल को देखने के लिए इसलिए होता है। सेंचुरी क्या होता है? यहाँ पे एनिमल को प्रिजर्व किया गया है। सम एरिया डिक्लेयर बायोरिजर्व, मतलब वो एरिया ऐसा जो वहाँ पे से कोई भी एनिमल को कंज्यूम नहीं किया जाएगा, वहाँ पे कोई भी प्लांट को, ट्री को क्या करेंगे? कट नहीं कर सकते, वहाँ पे कोई इंडस्ट्री सेटल नहीं होगा, वहाँ पे रोड पास नहीं होगा, वहाँ पे कोई माइनिंग एक्टिविटीज नहीं होगा, वहाँ पे कोई हंटिंग नहीं होगा, तो वो एरिया को बायो रिजर्व बोलते हैं। वैसे एरिया को बनाया जाता है वहाँ से कुछ भी ऐसा कंजम्पशन नहीं हो, वहाँ पे एरिया को कुछ अफेक्ट नहीं किया जाएगा अगर वो एरिया बायो रिजर्व डिक्लेयर किया जाता है गवर्नमेंट से। प्रोजेक्ट फॉर कंजर्वेशन ऑफ स्पेशल स्पीसीज, जो खास स्पीसीज है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है इन्वायरमेंट के लिए या जिनका क्वांटिटी बहुत ही कम है, तो उनके लिए क्या कंजर्व करने के लिए प्रोजेक्ट बनाया गया। जैसे टाइगर है, टाइगर प्रोजेक्ट बनाया गया था, टाइगर का क्वांटिटी क्या हो रहा है? कम हो रहा है इंडिया में, तो इंडियन गवर्नमेंट ने टाइगर प्रोजेक्ट बनाया, जिसकी वजह से टाइगर का पॉपुलेशन इंडिया में इंक्रीज हो गया। अभी क्या होता है कि टाइगर की वजह से क्या होता है? टाइगर बचाएंगे तो मतलब जंगल बचाएंगे, और टाइगर क्या थोड़ा फेमस है, पब्लिक को बहुत पसंद है टाइगर, तो टाइगर के क्या बोलते हैं? अम्ब्रेला स्पीसीज बोलते हैं। टाइगर के अंडर में क्या होगा? दूसरे स्पीसीज का भी जान बच जाता है। टाइगर को बचाने के तो डियर भी बचेगा, टाइगर को बचाने के तो एलिफेंट भी बचेगा। क्यों? क्योंकि टाइगर को बचाने का तो जंगल नहीं काटेंगे लोग, तो जंगल में रहने वाले सिर्फ टाइगर सिर्फ थोड़े रह रहे हैं, क्योंकि दूसरे ऑर्गेनिज्म भी रह रहे हैं, तो दूसरे ऑर्गेनिज्म सिर्फ टाइगर की वजह से क्या हो रहे? सेव हो जा रहे हैं। तो टाइगर इज अम्ब्रेला स्पीसीज बोला जाता है इसको। कवरिंग ऑल प्लांट एंड एनिमल्स, सारे प्लांट एनिमल को हमें क्या करने का? प्रोटेक्ट करने का। ऑब्जर्विंग द रूल, जो रूल बनाए गवर्नमेंट ने, बहुत सारे रूल है, एक्ट पास किए, उनको पास करने का, उनको फॉलो करने का। ट्रेडिशनल नॉलेज है, ट्रेडिशनल नॉलेज में हम लोग फॉलो करेंगे तो क्या होगा कि हम लोग नेचर से टच में रहेंगे, एनवायरमेंट के टच में रहेंगे। बहुत सारे सोसाइटी है, वॉलंटरी दे आर कमिंग, एनजीओ है, दे आर कमिंग टू प्रोटेक्ट द नेचर, टू प्रोटेक्ट द इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायरमेंट। इसलिए इंटरनेशनल, नेशनल, स्टेट लेवल पे है, प्राइवेट लेवल पे भी बहुत सारे लोग इसमें काम कर रहे हैं। काफी सारे एनजीओ अभी आपको मिलेंगे जो नेचर को प्रोटेक्ट करने के लिए आगे बढ़ते हैं।
So till now this video is enough. We will continue our lecture afterwards in the next video. Assalamu alaikum.